fibers. And in fibers, like we have discussed yesterday about hairs, similarly we'll discuss about fibers. So when I say the term fiber, like we have clothes, okay, and those clothes, they are made up of simple tiny threads, very thin threads, which are joined together, and that joining of those threads leads to the completion of a cloth. So whenever we recovered some sort of threads adhere to any kind of suppose weapon of offense, then these threads, or we commonly called as fibers, they also act as a crucial evidence because they help in linking the suspect with the crime or linking the victim with the crime. Or we can also say that because of the Locard's principle of mutual exchange, they establish a connection between victim and the suspect, or might be like suspect with the scene of crime, victim with the scene of crime, like that. So they can be find like adhere to any of the object. ठीक है, आपका सपोज कोई वुडन ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको कुछ अडेयर करा हुआ मिल सकता है, आपको हो सकता है कहीं पे फ्लोर पे कुछ फाइबर वगैरह मिल सकता है, देन कोई भी डोर नॉब या कुछ भी ऐसा लैच वगैरह है जहाँ पे चांसेस हैं कि हाँ व्हेन द पर्सन वाज पासिंग बाय चांस सम लाइक हिज क्लोथिंग और हर क्लोथिंग गॉट स्टक देयर, तो वी कैन हैव सम ऑफ द फाइबर्स. Again, it's not necessary that we recover in each and every case. It's not a sure shot evidence. Okay, it's depend on case to case. So fibers are what? They are the thread like structure, a thread like filamentous very thin type of structure, because we are not saying a complete cloth. ठीक है, जैसे if suppose I'm talking of any sort of handkerchief, so that handkerchief is made by joining some of the fibers together. So we may recover those threads, and these are very tiny, okay, or sometimes long. Tiny in the sense I'm not saying about the length, but in very less amount. They are in the form of a filament, like you have seen filament lies like a long thread like structure. ठीक है, जैसे सपोज हम किसी को टिश्यूज वगैरह में दे यूज टू डील विद दिस टर्म फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर है, या टिश्यूज में जैसे कि मोटाइल है किसी के टिश्यूज, तो बिकॉज ऑफ दैट सेल्स में मोटिलिटी है, तो वी हैव अ फिलामेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स अ लॉन्ग स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसमें लेंथ ज्यादा इन कंपैरिजन टू द विड्थ, इन कंपैरिजन टू द ब्रेड्थ, and it is a elongated structure. It's not necessary कि वो एकदम straight होगा. It can be curled also, it can be twisted also. So that will depend on the material. So usually fibers आपके किससे बनते हैं? They are made from either vegetable tissue, any sort of mineral substance, ठीक है, या फिर suppose they may be from any sort of animal origin too. Vegetable tissue क्यों? क्योंकि जैसे we are saying cotton cloth है, तो cotton comes from where? Cotton comes from the plant, from the natural source. इसी तरीके से आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, लाइक इफ आई से रेयन, इफ आई से नायलॉन, तो ये सारे क्या है? दे आर फॉर्म फ्रॉम द मिनरल सब्सटेंसेस. ठीक है, एंड सपोज इफ आई एम सेइंग दैट वूल या कैशमेयर, सो दे आर लाइक काइंड ऑफ फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. सो फाइबर्स के भी डिफरेंट सोर्सेज हैं, कहाँ से वो ऑब्टेन हो रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. जनरली fibers are used in the manufacture of clothing, ठीक है, and not only restricted to clothing, automobile seats, carpets, home furnishings, and a variety of other items. Depending on the characteristic of the fabric, आपका फैब्रिक किस तरीके का है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका क्या फाइबर उसमें प्रेजेंट है. So when people, and how we usually recover them, because the Locard's principle of mutual exchange, something is exchanged between the object or between the people and with the scene of crime. So it helps in establishing a link and also a supporting evidence or a corroborative evidence. So once these fibers they got transferred, they may remain onto the recipient clothing for a short period of time or for like many hours, and that's why this is another type of evidence which is being transferred unnoticed. Then forensic significance, why these are important? They may become important evidence because they establish that link that involves some personal contact. They may recover in cases like homicide case, some sort of assault case, sexual offenses, because of the cross transfer between the clothing of the suspect and the victim. Then in shooting case also it might be possible. ठीक है, पहले assault का case हो and then the person murdered the victim. Similarly, the force of impact between the, अगर suppose hit and run का case है, तो victim और vehicle के बीच में contact establish हो सकता है, जैसे कि मे बी कि some fiber या some threads, okay, some like portion of the clothing got adhered to the door of the vehicle, ठीक है, while closing it. और जैसे ऐसा होता है ना कि हम vehicle में we used to sit sometimes what we see that कि हमारा कोई ना कोई clothing जो है वो while closing the door it is lying outside, तो इस तरीके से वो adhere हुआ हमें मिल सकता है. So these type of incidences often leave fibers, threads, or even sometimes the entire clothing adhering to different parts of the vehicle. They may also be found to be fixed in the screens, or suppose like glass broken है, वहाँ पे आपको adhere हुआ मिल रहा है. So it can be like that. So showing any sort of like burglary attempt है या फिर breaking of the lock, someone tries to gain entry, forceful entry,
the person is trying to take, and during that some of the like his clothing got adhere to those broken pieces of glass, तो वहां पे भी आपको मिल सकता है. Then why they are important? Because they got transfer easily, they are persistent. ठीक है, नेचर क्या है इनकी, अगेन लाइक हेयर्स, दे डू नॉट डिग्रेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे रिमेन लाइक स्टर्डी रहेंगे. ठीक है, और वी कैन से लाइक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. इट्स नॉट लाइक कि जैसे आपका लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज है उसके अकॉर्डिंग फाइबर्स हमारे कंपैरेटिवली कैसे एविडेंस है कि इट रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज, कि उसको कोई एनवायरमेंटल कंटामिनेशन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, कोई प्यूट्रिफैक्शन हो रहा है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद देम. That's why they are treated as some important, valuable forensic evidence, and especially microscopic evidence, because we get lots and lots of information when we do the microscopic analysis of these fibers. Then there may be multiple transfers also, which help in determine how a series of events occur. Suppose जैसे मैंने बोला कि burglary का भी केस था प्लस मर्डर का भी केस था, तो हो सकता है मल्टीपल ट्रांसफर आपको मिले. ठीक है, so that will depend on case to case. Again, only we have to cautiously look at the scene of crime and establish the link, what sort of the events has occurred there. They are often produced with a specific end use in mind. Like suppose किसी ने बॉडी को रैप करने की कोशिश करी हो, ठीक है, डंपिंग ऑफ बॉडी करी हो, might be it's like प्राइमरी क्राइम सीन आपका कुछ और है, प्राइमरी लोकेशन, एंड सेकेंडरी लोकेशन कुछ और है, इस तरीके का सीन हो सकता है. माइक्रो क्राइम सीन या मैक्रो क्राइम सीन वाला सीन हो सकता है. सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. Certain objects such as carpets, they are made from the fibers with particular properties. जैसे कि जो हमें फाइबर रिकवर हो रहा है, तो लाइक बाय सीइंग इट, बाय टचिंग इट, उसका टेक्सचर देख के वी गॉट सम ऑफ द आइडिया कि किस तरीके के क्लॉथ का फाइबर होगा. जैसे जो कारपेट के फाइबर होंगे आपके, वो बहुत ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल के हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप इजीली उसे देख के कह सको कि हाँ ये तो वूल टाइप का बना हुआ है या तो ये कॉटन का है, ऐसा नहीं होगा. मीन्स थोड़ा सा रफ टफ टाइप का होगा जो कारपेट वाला फाइबर होगा यूजुअली. या फिर अगर आपको सपोज वो फाइबर का टेक्सचर उसको टच करके आपको लग रहा है कि हाँ ये किसी क्लोथिंग का हो सकता है, माइट भी कोई कैजुअल वेयर का हो सकता है, तो वो आपको डिफरेंट दिखेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द properties of that particular fiber. They come in a huge variety of colors, as we know different clothings are there. ठीक है, fibers को dye करा जाता है, तो different dyes are available, and why they are having different colors, because of thousands of dyes and pigments are used to color them. So when we recover any fiber, then by simply seeing it color does not like we can reach to any sort of conclusion. We have to examine it properly, we have to take it to the forensic lab and do the microscopic examination carefully to check what sort of color it is having, what sort of like to study its cross section. ठीक है, किस तरीके के ट्विस्ट आ रहे हैं, आपको मटेरियल किस तरीके का लग रहा है, क्या उसकी फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कि जिस मटेरियल से बन रहा है वो फर्दर किस तरीके के केमिकल से बना होगा, पॉलीमर है या नहीं है, कैसा मटेरियल है. सो ऑल दैट इंक्लूड्स अंडर द फोरेंसिक एनालिसिस, जब हम उसके केमिकल कॉम्पोजिशन तक स्टडी करते हैं. So this was about a brief overview of fibers. Now moving on to the classification of fibers. So fibers are usually classified into two broad groups. The first one is the natural and second is synthetic. So in most of the books you find these two categories, natural fibers and synthetic fibers. But in some you might find a third category also, semi-synthetic one. Otherwise, mostly the semi-synthetic is all again like included in the synthetic fiber only. So natural fibers क्या है? As the name indicates, natural means that may be coming from some natural source. ठीक है, वो natural source आपका plant origin का भी हो सकता है, means any sort of vegetable origin, plant origin we can say, या फिर animal origin का भी हो सकता है. And like कहीं पे आपको इस तरीके का क्लासिफिकेशन मिलेगा, broadly natural, synthetic. कहीं पे आपको मिलेगा vegetable origin, animal origin, synthetic या mineral based, ऐसा भी मिल सकता है. बट अगर आप ब्रॉडली लेके चलोगे तो बिकॉज आपका प्लांट और एनिमल एक में कवर हो रहा है, तो वी हैव दोज नेचुरल फाइबर्स, और जो आपके मैन मेड फाइबर्स है जितने भी, दैट कम्स अंडर सिंथेटिक फाइबर्स. सो द नेचुरल वंस दे आर होल सोली ड्राइव फ्रॉम द एनिमल और प्लांट सोर्स. एनिमल सोर्स में क्या आ जाएगा, एनिमल फाइबर्स मीन्स जो कि जनरली लाइक हेयर कवरिंग्स है और डिफरेंट एनिमल्स, जैसे कि शीप से आपको वूल मिल रहा है, गोट से आपको मोहेर मिल रहा है, ठीक है, कैशमेयर मिल रहा है. देन कैमल्स के जो स्किन होती है, उसके जो हेयर्स होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं. If you people know, like I don't know you are aware of it or not, like those fingerprint brushes which we use to develop the fingerprints, these are made from the hairs of camel. The simple brushes I'm talking, जो fingerprint develop करने के लिए हम यूज करते हैं पाउडर मेथड में, तो मोस्टली ब्रशेज जो होते हैं आपके वो कैमल हेयर से बने होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट मैग्नेटिक पाउडर, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल ब्रशेज. देन एलामस, अल्पाकास, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फाइबर्स हैं जो कि आपके एनिमल सोर्स से आ रहे हैं. देन वी हैव
सम सॉर्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन वाले फाइबर्स, प्लांट जैसे आपका कॉटन है, ठीक है, सेल्यूलोज से आ रहा है, जूट है वो भी किसी प्लांट से आ रहा है, हेम्प है किसी प्लांट से आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हैं जो कि प्लांट ओरिजिन से आ रहे हैं। देन वी हैव सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? दीज आर द मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स and they are derived by some sort of manufacturing process, means the person try to manufacture them using some sort of manufacturing process. तो generally polymers होते हैं वो आपके, and the polymers derived by the process or by the method of polymerization. कोई polymeric material होगा, उसकी आपने, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, we have one unit that is the monomer and we keep on adding the same unit together, ठीक है, और हमने एक elongated chain बना दिया उसका, so that becomes a polymer. जैसे कि आपका नायलॉन है, ठीक है, या फिर आपका एसीटेट है, एक्राइलिक फाइबर है, एक्राइलिक मटेरियल के होते हैं, तो दीज आर व्हाट, दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि और इन द सेम वे लाइक वी हैव वूल, अब एनिमल फाइबर में बोलेगा अगर हम, तो वी हैव वूल, ठीक है, बट अगर सपोज किसी को वूल का सब्सटीट्यूट चाहिए, तो वी हैव दैट एक्राइलिक फाइबर, ठीक है, बट ये सिंथेटिक है एंड वूल इज अ नेचुरल वन। सो इस तरीके से ये डिफर करते हैं। देन वी हैव सेमी सिंथेटिक, सो अ सेपरेट टाइप ऑफ फाइबर विच इज, वैसे तो इट इज मेड फ्रॉम अ नेचुरली अपरिंग सब्सटेंस, एक नेचुरल सब्सटेंस से बन रहा है, जैसे कि रेयन। पर्टिकुलर एग्जाम्पल होता है कि मीन्स इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, नेट में भी माइट बी क्वेश्चन कैन कम। ये एक पर्टिकुलर ऐसा फाइबर है जिसको हम सेमी सिंथेटिक बोलते हैं ना, क्योंकि वो पूरी तरह लैब में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है और वो ऑब्टेन किस, मतलब थोड़ी सी उसकी प्रोसेसिंग करी जा रही है लैब में, सो दैट्स व्हाई सिंथेटिक, ठीक है, बट पूरी तरह सिंथेसाइज लैब में नहीं हो रहा है, इसलिए सेमी सिंथेटिक। वाई पूरी तरह नहीं सिंथेसाइज हो रहा है? बिकॉज वो हमें मिल किससे रहा है, इट इज लाइक कमिंग फ्रॉम सम नेचुरल सोर्स, ठीक है, वुड पल्प रेसिड्यू से ऑब्टेन हो रहा है वो, मतलब जो आप जैसे कॉटन आपका ऑब्टेन होता है या सेल्यूलोज से बनता है, तो वहां से आ रहा है, बट उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है लैब में, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ सेमी सिंथेटिक फाइबर या फिर रीजनरेटेड फाइबर। तो आपका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है इसमें रेयन एंड एसीटिक, बट मोस्ट कॉमन इज द रेयन। So the fibers of natural origin, like I was talking of, so you can see cotton, जो कि कॉटन प्लांट से आ रहा है, वूल, ठीक है, अगेन एनिमल सोर्स से आ रहा है, शीप से, लिनन जो कि आपका फ्लेक्स प्लांट से आ रहा है, देन यू हैव सिल्क, एनिमल से आ रहा है, सिल्क वॉर्म से आ रहा है, देन मिनरल फाइबर्स, एस्बेस्टॉस नेचुरल मिनरल से आ रहा है, कैशमेयर गोट से आ रहा है, मोहेर रैबिट से आ रहा है, लाइक दैट। सो नेचुरल फाइबर्स क्या है, ब्रॉडर कैटेगरी कवर कर रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द सिंथेटिक वंस। सी सिंथेटिक में आपका नायलॉन, नायलॉन के मटेरियल होते हैं, ठीक है, नायलॉन के लाइक वी हैव क्लोथिंग्स, देन पॉलीएस्टर मटेरियल होता है, ओलिफिन, एसीटेट, एक्राइलिक, स्पेंडेक्स, फाइबर ग्लास, दीज आर ऑल सिंथेटिक फाइबर्स। देन सेमी सिंथेटिक में वी हैव मोस्टली दी रेयन, जो कि आपका वुड पल्प से ऑब्टेन हो रहा है। So these are some of the fibers along with their characteristics, like acetate, particularly अगर मैं acetate की बात करूं, तो acetate क्या है, कैसी characteristics हैं इसकी, लाइक कंपैरेटिवली सॉफ्ट होगा अदर फाइबर्स से, ठीक है, लग्जूरियस फील या अपीयरेंस के लिए यूज होता है, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज, ड्रेस वगैरह में यूज हो रहा है, गारमेंट्स लिंगरीज बनाने में यूज हो रहा है, स्पोर्ट्स वेयर में, फैब्रिक्स में, ठीक है, देन होम फर्निशिंग्स में यूज हो रहा है, अपहोल्स्ट्री बनाने में यूज हो रहा है, एंड मेनी मोर थिंग्स, पिलोज, क्विल्टेड प्रोडक्ट्स, इन सब में आपका एसीटेट यूज होता है। देन मूविंग ऑन टू एक्राइलिक, एक्राइलिक इज मोर सॉफ्ट एंड वार्म, वूल लाइक फाइबर है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, रेजिस्टेंट है सनलाइट से, मींस फेड नहीं होगा, मॉथ से, जैसे होता है ना गर्म कपड़ों में हम कहते हैं कि हाँ कीड़े लग गए, तो हमें वी यूज्ड टू कीप दोस नैपथलिन बॉल्स, तो ये एक्राइलिक फाइबर क्योंकि सिंथेटिक है, तो इसलिए ये चीज नहीं होती उसके साथ, रेजिस्टेंट है ये मॉथ से और केमिकल से। अगेन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इन्फेंट वेयर, निटेड गारमेंट्स, ठीक है, फ्लीस, पाइल फैब्रिक्स, होम फर्निशिंग्स में यूज हो रहा है, कारपेट्स बनाने में, ब्लैंकेट्स में, एंड मेनी मोर सच स्टफ। Then again, we have different fibers, aramid, then some sort of bio component, lyocell, means the list is huge. Then rayon, rayon is having highly absorbent material, soft, comfortable. It is versatile in nature, ठीक है, easy to dye. जैसे कि रेयन की आपकी साड़ी वगैरह होती हैं, ड्रेसेस होती हैं, जैकेट्स होती हैं, रेन कोट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, कुछ मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी इससे बन जाते हैं, ठीक है। सो इट इज हैविंग a huge application. Then next fiber is spandex, that is again a synthetic one, जो कि आपका बाथिंग सूट्स, लेसेस, गारमेंट्स, गोल्फ जैकेट्स, इस तरीके की चीजें बनाने में यूज हो रहा है। देन वी हैव लाइक मेलामाइन, मेलामाइन इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीमर ओनली, ठीक है, तो इसी तरीके का फाइबर है ये, जिसकी फ्लेम रेजिस्टेंस ज्यादा है एंड थर्मल कंडक्टिविटी कम है, मीन्स ज्यादा हीट पास ऑन नहीं करता, और हाई रेजिस्टेंट, दैट्स लाइक क्रॉकरीज आर बीइंग मेड टुडे फॉर दिस मेलामाइन
फायर ब्लॉकिंग फैब्रिक्स है तो एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज हो रहा है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फायर फाइटर्स वगैरह के लिए यूज करा जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में यूज हो रहा है, लाइक दैट। देन नायलॉन, इट इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, एब्रेड नहीं करता बहुत जल्दी, लस्ट्रस है, इजी टू वॉश, रेसिस्ट डैमेज फ्रॉम मेनी केमिकल्स, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लाइक एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसलिए ये भी बहुत तरीके के वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है। देन वी हैव ऑलिफिन, ऑलिफिन आपका यूज हो रहा है अगेन स्पोर्ट्स वेयर बनाने में, देन कारपेट मेकिंग में, स्लिप कवर्स बनाने में, नेट्स बनाने में, लॉन्ड्री बैग, सैंड बैग्स, लाइक दैट। देन वी हैव पॉलिएस्टर, इट इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग, तो जितने आपके जो लाइक स्ट्रेच मटेरियल वगैरह नहीं होते उस तरीके के में आपका पॉलिएस्टर यूज होता है, पिलो केस, कर्टेन्स, ड्रिपरीज, belts, ropes, nets, ऐसे मटेरियल में। Then one is this PBI. This is another type of fiber. So it is suitable for making fire again. Means it is flame resistant. तो जो भी आपका flame resistant fiber होगा वो आपका फायर फाइटिंग में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस सूट बनाने में उसमें जाएगा। So this was the broad classification and different types of fibers with their characteristics and uses. तो broadly we have discussed, but अगर हम थोड़ा सा अलग हट के से डिस्कस करेंगे तो they can fibers can also be designated by their chemical maker. Means chemically वो किससे बने, whether they are made up of proteins, whether they are made up of some cellulose material, जैसे proteins एक अलग chemical हो गया, ठीक है, chemistry wise. Cellulose आपका एक different molecule हो गया, different material हो गया, that is made up of some carbohydrates. Then we have minerals, then we have synthetic, like that. तो जो प्रोटीन के फाइबर्स हैं वो किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड को अगर हम बहुत सारे अमीनो एसिड मिला देंगे देन वी गॉट प्रोटीन। देन सेल्यूलोसिक फाइबर्स दे आर द पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स को ज्वाइन कर दे टुगेदर वी गेट सेल्यूलोज टाइप मटेरियल। देन inorganic mineral fibers, they may be composed of silica which is obtained from the like breaking down of rocks and sand. Synthetic fibers, they are made from the polymers that originate from small organic molecules that combine with water and air. तो जिस मटेरियल का बना होगा along with certain chemical reactions, water and air के साथ जो भी organic molecules है, so we can able to create these synthetic fibers. Then one is like denier is the we can say a numbering system, ठीक है, which is usually being applied or used to weigh these type of fibrous material. So it is the weight in grams of 9,000 meters of the fibrous material. तो जैसे हम लेंथ के लिए मीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी यूज केजी फॉर वेट। इन द सेम वे फॉर दिस फाइबर मींस द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका डेनियर एक तरीके का एक टर्म है जो कि यूज करी जाती है, दैट इज द डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम फाइबर का वेट मेजर करें इन ग्राम्स। So it is a numbering system in which the lower numbers represent the finer size and the higher number represent the larger size. तो वो डिपेंड करेगा कि फाइबर किस तरीके का। डायमीटर ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर इज रिलेटिवली स्मॉल, जो डायमीटर होगा वो छोटा होता है टेक्सटाइल फाइबर का, रेंजेस फ्रॉम अप टू दिस इंच, ठीक है, या इतना माइक्रोमीटर, एंड लेंथ जो है वो वेरी करती है। सो बेस्ड ऑन द लेंथ, अब बिकॉज वी आर डीलिंग विद फाइबर सो वी मस्ट हैव सम ऑफ द नॉलेज कि ब्रॉडली तो हमने स्टडी कर लिया, अपने साइंटिफिक लेवल पे हमें ये पता लग गया कि वो नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है, ठीक है, बट व्हेन वी हैव टू गो टू द डीपर लेवल तो हमें पता होना चाहिए वो प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, किससे बना है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बट जब हम लाइक सर्च कर रहे हैं या पता कर रहे हैं तो हमें डील करना पड़ेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, क्योंकि वहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे किस तरीके से डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन द लेंथ फाइबर को फर्दर क्लासीफाई करते हैं, फिलामेंट टाइप का फाइबर है या फिर स्टेपल टाइप का फाइबर। तो फिलामेंट टाइप का फाइबर क्या होता है, दे आर द टाइप ऑफ फाइबर हैविंग इनडेफिनिट और एक्सट्रीम लेंथ, मींस इट इज टू बी कंटीन्यूअसली लॉन्ग, जैसे कि सिल्क, जैसे कि जिसको हम कह रहे हैं ना पूरे लाइक रोल के रोल आ रहे हैं, बंडल के बंडल आ रहे हैं किसी भी ऐसी चीज के, तो मींस कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस इन लेंथ, सो दैट इज अ फिलामेंट टाइप फाइबर। एंड स्टेपल फाइबर्स आर, these are the natural fibers or cut length of filaments, means स्टेपल वालों की लेंथ कम है इन कंपैरिजन टू द फिलामेंट टाइप फाइबर। उनको फिलामेंट टाइप इसलिए रखा है, जैसे सपोज हमारे पास एक पूरा लंबा धागा है, उसका ना हमने ऐसे रोल बना लिया, रोल बनाते चले गए, जैसे सपोज आई एम मींस नॉट नेसेसरली दैट वूल कम इन दिस, बट आई एम लाइक नॉर्मली गिविंग यू एग्जांपल, जैसे कि वूल है तो वो वूल का हमारे पास एक पूरा बॉल होता है, ठीक है, तो उसमें से वो एक थ्रेड है वो कॉन्टिन्यूसली रोल अप हुआ है, ठीक है, रोलिंग बॉल की तरह, सो दैट इज अ फिलामेंट टाइप ऑफ फाइबर। बट अगर मैं उसको कट कर दूं, उसके लेंथ कम कर दूं, लेंथ कम हो जाए उसकी, सो दैट इज एक्टिंग एज अ स्टेपल फाइबर। सो ऑल नेचुरल फाइबर्स आर स्टेपल फाइबर एक्सेप्ट सिल्क, सिल्क को छोड़ के, एंड मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स दे ओरिजिनेट एज फिलामेंट, जो भी बन रहे हैं वो एज अ फिलामेंट की तरह बनते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वो कट हो जाते हैं और वो स्टेपल फॉर्म ले लेते हैं। तो ऑल फाइबर्स चाहे वो नेचुरल हो, मैन्युफैक्चर्ड हो, मोस्टली क्या है चेन टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल से बन रहे हैं, मीन्स पॉलीमर्स से डिराइव हो रहे हैं। और पॉलीमर्स मीन बहुत सारे एक तरीके के यूनिट्स लगातार
स्प्रेड कर रहे हैं, क्रॉस लिंक हो रहे हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग अ पॉलीमर. Then, moving on to the manufacturing of fiber, how fibers are manufactured. Yarn is the term which is used for continuous strands of the textile fibers, filaments, or the material in a form suitable for weaving, knitting या फिर इंटैंगलिंग करने के लिए कि हम कोई फैब्रिक डिजाइन कर रहे हैं, कोई फैब्रिक बना रहे हैं. मतलब एक फैब्रिक को डिजाइन करने के लिए, जैसे सपोज इफ आई एम सिंपली सेइंग अ हैंकरचीफ, तो उसको बनाने के लिए हमारे को बहुत सारे फाइबर्स का यूज हो रहा है. ठीक है, वो फाइबर जो है वो आपका फिलामेंट टाइप का भी हो सकता है. ठीक है, उससे आप चाहे तो आप वीविंग कर सकते हो, नॉर्मल स्टिचिंग जैसे है, या निटिंग कर सकते हो जिसको हम जैसे कढ़ाई बुनाई कहते हैं, वो कर लो. तो मतलब इतने सारे प्रोसेस से होके गुजरता है, तब आपको एक फाइन फैब्रिक मटेरियल मिलता है. सो दैट फैब्रिक इज कंसिस्टिंग ऑफ अ मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं yarn. A yarn may be constructed as a number of smaller single yarns. These छोटे छोटे से yarns होते हैं. ठीक है, और वो क्या है, twisted together to form a plied yarn. मीन्स एक बड़ी चीज, जैसे एक थ्रेड को आपने बहुत बार ट्विस्ट करा, ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए, इंटेंगल्ड करा, खोला, मीन्स ऐसे कुछ करा, तब जाके आपको क्या मिल रहा है, ऐसे मल्टी एक सिंगल यार्न को आप बहुत बार ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो, तो आपको एक क्या है, एक पूरा बड़े लेवल का यार्न मिल रहा है. फिर वो जो यार्न पूरा मिला है, वो बहुत सारे यार्न से मिलके एक फैब्रिक बना रहे हैं. तो हुआ क्या, फाइबर यार्न का एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है, और मल्टीपल यार्न्स टुगेदर फॉर्म अ फैब्रिक. तो यार्न्स मे बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट और नो ट्विस्ट. तो जब हम उस फाइबर में, अब अगर हम एक फाइबर को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें, सिंगल स्ट्रैंड, एक छोटा पतला सा धागे की हम बात कर रही हूँ, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, तो आपको क्या, वो सिंपल नहीं दिखेगा. माइक्रोस्कोप में यू कैन एबल टू सी वेदर इट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो वो एक लाइक एक फाइबर पे आपको लाइंस कैसे दिख रहे हैं, या आप कोई फैब्रिक ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस पर आपको कैसे ट्विस्ट दिख रहे हैं. क्या वो इस तरीके के एस शेप में जा रही है लाइंस, या वो जेड शेप में जा रही है, या कोई ट्विस्ट नहीं है उसमें. ठीक है, तो जो फाइबर के ऊपर आपको ऐसे ट्विस्ट लाइंस दिख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दी यार्न्स. तो बहुत सारे यार्न्स मिलके आपका क्या बना रहे हैं, फाइबर, और बहुत सारे फाइबर मिलके आपका बना रहे हैं फैब्रिक. देन मैन्युफैक्चरिंग में आपका वीविंग हो सकता है. ठीक है, वोवन फैब्रिक्स हो सकते हैं, which are the fabrics composed of two set of yarns called warp and weft, and they are formed by interlacing of these sets of yarn. ठीक है, आप इनको जैसे इंटरलेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बांध देते हैं ऐसे, उसको कहते हैं वीविंग. दिस वार्प टाइप का जो yarn है वो लेंथवाइज रन करता है लाइक दिस. एंड आपका जो वेफ्ट है वो क्रॉस. तो ये ब्लैक वाले आपके वेफ्ट है, और ये व्हाइट वाले आपके वार्प है. तो ये वीविंग का प्रोसेस होता है. देन निटिंग. अब हम जब हम कपड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम उसको सील रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, ठीक है, या उसको निट कर रहे हैं. सो निटिंग फैब्रिक्स दे आर कंसिस्टिंग ऑफ इंटरलॉकिंग सीरीज ऑफ द लूप्स ऑफ दीज yarns. ठीक है, वार्प निटिंग एंड वेफ्ट निटिंग. वार्प निट्स yarn run lengthwise in the fabric, और वेफ्ट में they run crosswise. बेसिक कंपोनेंट क्या है, ऑलमोस्ट सेम रहता है. मतलब ना बहुत स्लाइट डिफरेंस इसमें है. इट्स लाइक यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, जब आप निटिंग कर रहे हो तो यू आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ लूप्स व्हाइल यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ निटिंग. जैसे कि हम सिलाई करते हैं, सिलाइयाँ यूज करके. ठीक है, जब हम कुछ निटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने तरीके से लूप्स उसमें इंकॉर्पोरेट करते हैं. तो वो हमें पता होता है कि हमें वो विड्थ वाले उसमें लेना है, लेंथ वाले में लेना है वो. बट वीविंग में ये वाली चीज नहीं होती. ठीक है, बट निटिंग में दिस लूप्स टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, बाकी रेस्ट अरेंजमेंट आपका सेम रहता है. फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है नॉन वोवन फैब्रिक. तो ये क्या है, बेसिकली इट इज लाइक दोनों का कॉम्बिनेशन है. ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी एक रैंडम वे में. ठीक है, और आप फाइबर्स को इंटैंगल भी कर रहे हो टाइप से. तो वो होते हैं आपके नॉन वोवन फैब्रिक्स. तो अब फाइबर में why we are studying this, because we are having so much of characteristics in the fiber, and those characteristics are important to deal with when we do the analysis, forensic analysis of such fibers. It's like crimp. फाइबर जो है उसमें किस तरीके की क्रिम्पिंग हुई हुई है. ठीक है, कितनी वेवीनेस है, कितने कर्ल्स है उसमें, कितनी वेवीनेस है, उसको कहते हैं क्रिम्पिंग. तो कुछ फाइबर्स में बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि वूल हो गया, लेकिन कुछ जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रेट होते हैं लाइक योर सिल्क. तो जब आपको फाइबर मिल रहा है एडेयर हुआ हुआ, तो आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करोगे. वन इज क्रिम्पिंग, इस तरीके का क्रिम्प है उसमें, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ फाइबर इधर नेचुरल फाइबर है या फिर मैन्युफैक्चर्ड वन है, व्हाट टाइप ऑफ फाइबर इट इज. देन कलर. कलर इज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी डाइज. ठीक है, तो आप कलर को नॉर्मली भी ऑब्जर्व करोगे, प्लस अगर
माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फिजिबिलिटी है, देन यू ऑब्जर्व इट अंडर दैट माइक्रोस्कोप, यू प्लेस योर सैंपल, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको उसके साथ अटैच है, क्योंकि अब वो कलर सब्सटेंस है, तो पर्टिकुलरली वो वेवलेंथ, आप वो लाइट डालोगे, यूवी विजिबल रेज आप उस पर डाल रहे हो, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में आपको इमेज भी क्लियर दिख रही है, एंड अलॉन्ग विद दैट वो पर्टिकुलर एक कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है जो विजिबल रीजन में लाई कर रही होगी। तो आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, इसने ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है, मतलब ये इस कलर का फाइबर है, एक्चुअल में ये कलर प्रेजेंट है। Then you study it under microscope and you check for the cross sectional shape. It's like I am discussing the characteristics in detail here. ठीक है, अब इसके बाद we'll having that collection preservation part and forensic analysis. तो उस forensic analysis में what we are going to study is these characteristics only. Clear enough? सो क्रॉस सेक्शनल शेप स्टडी करते हैं हम फाइबर के लिए, ठीक है, कैसा है, राउंड टाइप का है, ट्राइलोबल है, फ्लैट है, ठीक है, डम्बल शेप्ड अपीयरेंस है, किस तरीके का अपीयरेंस है उसका। देन डीलस्ट्रेंट है उसमें या नहीं, मतलब ऐसा होता है कुछ फाइबर हमारे को कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा शाइन कर रही है, ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसे डल से नजर आते हैं, तो डीलस्ट्रेंट तो नहीं एडेड उसमें। जैसे कि फाइनली ग्राउंड मटेरियल्स लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इनटू द केमिकल मिक्सचर फ्रॉम विच द फाइबर इज मेड। तो जब फाइबर को मैन्युफैक्चर करा जा रहा है या उसमें डाइज ऐड करी जा रही है, उस टाइम पे कुछ डीलस्ट्रेंट उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। सो क्या होता है, दे स्कैटर द लाइट एंड रिड्यूस द लस्टर ऑफ द फैब्रिक। तो वो फाइबर हमें ऐसा लगता है कि बहुत डल है, हो सकता है वो ब्राइट हो, तो वी कैन नॉट एबल टू लाइक प्रॉपरली फाइंड आउट कि हाँ ये तो डल टाइप में जा रहा है या इसका एग्जैक्ट कलर में क्या है, फिर ह्यूज आ जाएंगे, मीन्स वेरिएशन हो जाएगा, कहीं से हमें लग रहा है कि मे बी किसी पोर्शन से वो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा है, लस्टर दे रहा है, कहीं से ऐसा लग रहा है नहीं दे रहा। तो ये हमें नॉर्मल आइज से कलर हमें पता नहीं लगेगा, बट व्हेन वी एग्जामिन इट अंडर दैट माइक्रो फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, और हम उसका जब केमिकल कॉम्पोजिशन एनालिसिस तक जा रहे हैं, देन इट विल बिकम क्लियरर टू अस। Different manufacturers they use different type of delustrant. So these characteristics they help in determining the degree of association. कितना जो फाइबर हमने रिकवर करा है उसमें प्लस जो हमारा रेफरेंस सैंपल है कितना मैच हो रहा है, ठीक है, तो हम ये स्टडी करते हैं। एंड हाउ वी स्टडी यूजिंग दिस माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि लाइट उसमें से डिफरेंट एंगल पे पास होती है, तो हमने सिर्फ इट्स लाइक लाइट रेज है, लाइट रेज जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, बट जब हम कोई मटेरियल है आपका उसमें से लाइट पास हो रही है तभी हमें वो ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, जो कलर हमने ऑब्जर्व करा और जो रिफ्लेक्ट करा तो हमें वो कलर, वो ऑब्जेक्ट उस कलर का दिख रहा है जो बेसिक प्रिंसिपल है। बट आप पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप में क्या करते हो, इतनी सारी लाइट रेज है जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, सो यू ट्राई टू फोकस देम, ठीक है, आपने एक उनका कोहेरेंट सोर्स बना दिया, अब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही प्लेन से पास हो रही है उस ऑब्जेक्ट में से जा रही है, ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट सिर्फ एक सिंगल प्लेन में लाई कर रही है, या तो ऐसे वर्टिकल या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो प्लेन पोलराइज माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम पोलराइजर लगा देते हैं, ठीक है, तो जब सैंपल में से लाइट पास होगी तो सिर्फ वो ऐसे 90 डिग्री पे पास हुई, मीन्स ऐसे वर्टिकली पास हुई। अब जब वो लाइट वहां से पास हुई है तो हमारे पास कुछ डिटेक्टर होते हैं, कुछ प्रिज्म, कुछ ग्रेटिंग्स या फिल्टर्स, यू कैन सिंपली जूम, तो वो हम फिल्टर आगे लगाते हैं, वो क्या करता है उस लाइट को 90 डिग्री से पास कराता है, बस उसका एंगल चेंज करता है, तो वो किस एंगल से वहां से पास हुई, ठीक है, वो हम नोट करते हैं। ऑलरेडी लिटरेचर में वैल्यूज भी गिवन होती हैं, और वो एंगल जिस पे वो लाइट वहां से पास हो गई है तो मतलब कितना उसने लाइट को ऑप्टिकली रोटेट करा है, तो ये हर मटेरियल का फिक्स होता है एज पर द लिटरेचर वैल्यूज। तो उससे भी हमें आइडिया लगता है कि हाँ कौन से मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइबर्स की नोट करते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द केमिकल कॉम्पोजिशन। नाउ मूविंग ऑन टू द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। सी बहुत सारी जगह पे मिल सकता है फाइबर, ठीक है, तो आप जनरली जो क्राइम सीन सर्च मेथड होते हैं हमारे 7 स्टेप्स, वो आप अप्लाई करोगे, ठीक है, देन जहाँ पे भी आपको आपका एविडेंस मिल रहा है एज लाइक फाइबर्स you may came across, the relevant articles of the clothing they should be carefully packed, ठीक है, carefully collected in the paper bags. Each article must be separately packed. Cross contamination of evidence should not be there. अगर सपोज आपको बेडिंग, कारपेट्स, रग्स वगैरह मिल रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से आपको फोल्ड करना है कि जो आपका सस्पेक्टेड एरिया है जहाँ से आपको लग रहा है कि हाँ फाइबर वगैरह कुछ लाइक वहाँ से लूजन आउट है कुछ, तो वो इधर उधर स्प्रेड ना करें। अगर आप इंटायर इस तरीके का स्टफ कलेक्ट कर रहे हो, अगर सपोज आपको कार सीट वगैरह पे मिल रहा है तो पॉलीथाइलिन शीट से आपको उसे कवर करना है कि आपका फाइबर एविडेंस प्रोटेक्टेड रहे। नाइफ ब्लेड वगैरह पे मिल रहा है, ठीक है, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है एंड ट्राई की कॉशियसली करना है कि किसी को कोई इंजरी ना। अगर सपोज आपको लग रहा है कि यहाँ बॉडी को किसी इसमें रैप करके डंप करा गया है तो आपको ब्लैंकेट वगैरह भी मिल सकती है, ठीक है, माइट भी कुछ आपको
एंटायर ब्लैंक अगर आपको इजीली एक्सेसिबल है कि आप लेके जा सकते हो, इज इट इजी फॉर यू, देन यू कैन टेक द एंटायर ऑब्जेक्ट। बट अगर नहीं है तो यू कैन यूज टेप लिफ्ट मेथड टू कलेक्ट द एविडेंस, या फिर सिंपली हैंड पिकिंग बाय फोर्सेप आप कर सकते हो। Then the fiber must be removed with clean forceps, placed in the proper clean sheet of paper। ठीक है, कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फोल्डेड, इट शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड। ठीक है, एंड यू कैन सेंड इट टू डिफरेंट लोकेशन। बट अगर आपको सपोज कोई ब्लड स्ट्रेन मिल रहा है, वेट ब्लड टाइप है, तो आपको उसे एयर ड्राई करना है फर्स्ट एंड देन यू हैव टू कलेक्ट इट। इट्स नॉट लाइक कि आपको अगर स्टेन मिल रहा है, सपोज पेंट के स्टेन में मिल रहे हैं कुछ, या फिर ब्लड स्टेन में मिल रहा है, इंक स्टेन में मिल रहा है, ऑयल स्टेन में मिल रहा है, तो आपने एज इट इज उसको उठा के रख लिया। यू फर्स्ट अलाउ इट टू एयर ड्राई अ बिट, उसके बाद आप उसे कलेक्ट करें। देन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, आपने कलेक्ट करा, प्रिजर्व करा, क्योंकि कलेक्शन प्रिजर्वेशन एज सच कोई बहुत हार्ड फास्ट नहीं है इसमें। यू कैन सिंपली यूज पेपर एनवलप्स। ठीक है, या फिर आप जिपलॉक एनवलप भी यूज कर सकते हो अगर कंप्लीटली ड्राइड फॉर्म में है। बट अगर सपोज थोड़ा बहुत भी वेट है तो आप प्लास्टिक और मॉइस्चर वाला नहीं करोगे, ट्राई टू यूज सम सॉर्ट ऑफ कंटेनर्स। देन एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में आप फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करोगे। वी गो स्टेप बाय स्टेप। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, देन कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी में भी स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उसमें क्या क्या आ जाएगा, किस लेंथ का फाइबर है जो रिकवर हुआ है, थिकनेस उसकी चेक करोगे, डायमीटर चेक करोगे, देन उसका सरफेस चेक करोगे, टेक्सचर कैसा है, कलर आपको कैसा दिख रहा है, फॉर बोथ द क्वेश्चन एंड द स्टैंडर्ड सैंपल। अब सपोज आपको क्राइम सीन पे क्वेश्चन सैंपल तो मिल रहा है विक्टिम की बॉडी के साथ कुछ अडेयर हुआ हुआ, ठीक है, तो अब आप ये देखोगे कि वहाँ जो फाइबर मिला है वो विक्टिम की क्लोथिंग का है या नहीं है, तो दैट विक्टिम की क्लोथिंग एक्ट एज योर स्टैंडर्ड फॉर इट। अगर आपको सपोज कारपेट के आसपास मिल रहा है तो आप चेक करोगे, आपको वेरीफाई करने के लिए उस कारपेट का मटीरियल लेना पड़ेगा। सो दैट इज, या फिर बॉडी रैप कोई मिल रही है, हो सकता है उसका फाइबर और विक्टिम की क्लोथिंग का ना हो, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड विक्टिम की क्लोथिंग भी और प्लस जो आपको ब्लैंकेट या रैप जो भी चीज़ है जिसमें बॉडी मिली है उसका भी आपको मटीरियल लेना होगा। So you have to collect both the standard and the question samples for the comparison. Then you can use stereo microscope ताकि आपको easy analysis का वे मिल जाए। वो आपको साइज जूम करके दिखाएगा, मैग्नीफाई करके दिखाएगा, तो आपको साइज पता लग जाएगा, कलर, क्रिम्पिंग वगैरह पता लग जाएगी। कोई पॉसिबल फॉरेन मटेरियल तो अडेयर नहीं करा हुआ, जैसे सॉइल वगैरह या कोई और डेब्रिस इज देयर और नॉट। अगर आपको पता लग रहा है कि जो एग्जिबिट जो सैंपल है वो यार्न है, थ्रेड है या फैब्रिक है, तो आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कभी कभी होता है ना, सपोज क्लोथिंग मिल गई और क्लोथिंग में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ फटा हुआ है इसका पोर्शन, ठीक है, टॉर्न आउट पोर्शन इज देयर, तो आपको उस क्लोथिंग से और वो जो टॉर्न आउट पोर्शन है कहीं से, तो यू कैन गेट सम ऑफ द आइडिया कि किस तरीके के मटेरियल का फाइबर है, ठीक है, कहाँ किस तरीके की लाइक कोई ब्रांडेड थिंग है या नहीं है, ऐसे कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। Then after doing this much physical examination, then you go for confirmation। तो confirmation के लिए आप polarized light microscope यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप further optical property study करोगे। refractive index आप उसका चेक कर सकते हो, जैसे हमने ग्लास का करा था, इन द सेम वे। then birefringence चेक कर सकते हो, that is a property that some fibers, स्पेशली फाइबर के केस में प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या है, दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शो करते हैं बिकॉज लाइट इज पासिंग। देन कलर डिटर्मिनेशन कर सकते हो आप माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। एफ कर सकते हो आप, ठीक है, एफ में आपको कंप्लीट उसका केमिकल प्रोफाइल मिल जाएगा, किस कंपोनेंट से बना, अगर पॉलीमर है आपको सिर्फ इतना पता लगा नायलॉन का पॉलीमर है, तो उसमें क्या मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कितना मतलब कार्बन कैसे है, कैसे अरेंजमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। आप गैस क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो, उसको हीट करके पाउडर सब बना के उसका पायरोलिसिस करके उसका, देन यू कैन गेट कि किस किस कॉम्पोनेंट से वो बना है, देन आप उसका एमएस कर सकते हो। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जो हम आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जामिनेशन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बायरफ्रिंजेंस, कलर वी कैन स्टडी, ठीक है। और कभी कभी फाइबर क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस देते हैं बिकॉज ऑफ द डाइज विच आर देयर, विच आर प्रेजेंट, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं हम। फाइबर्स वे कैसे, फाइबर्स जो है दे वेरी इन देयर शेप, ठीक है, बट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज थिकर इन द सेंटर देन नियर द एजेस। तो एजेस जो है उनकी एंडिंग जो है वहां से वो बहुत थिन होते हैं इन कंपैरिजन टू द सेंटर। सो दे एक्ट एज स्क्रूड लेंसेज, इधर कॉन्सेंट्रेटिंग, या तो लाइट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं या डिस्पर्स करते हैं लाइट को, जब लाइट उनसे पास ऑन हो रही है। अगर फाइबर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई है, देन द मीडियम इन विच इट इज माउंटेड, तो हम एक लिक्विड मीडियम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें फाइबर को रख रहे हैं, तो अब जिस मीडियम में हमने फाइबर को रखा है उस मीडियम का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइबर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम है तो वो कन्वर्जिंग लेंस एक्ट करेगा, ठीक है, लाइट को कन्वर्ज कर देगा। और अगर सपोज ज़्यादा है तो लाइट को डाइवर्ज कर देगा, मीन्स स्कैटर कर देगा, फैला देगा, डिस्पर्स कर देगा। तो इस तरीके से हम उसका आर निकाल सकते हैं यूजिंग ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप अटैच विद इट, ठीक है। देन हम साथ साथ अपने क्वेश्चन सैंपल का भी कंपेयर करेंगे, या फिर हम वैसे भी कर सकते हैं कि हम एक सीरीज ऑफ लिक्विड लेते हैं, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें पता है, हैविंग स्पेसिफिक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और फाइबर को उसमें माउंट करते हैं लिक्विड में कॉम्बिनेशन में, जैसे हमने डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए करा था कि जिसमें सेटल हो रहा है,
ठीक है, तो उससे हमें दोनों का सेम डेंसिटी पता लग जाएगी। इसमें क्या होगा कि जब हम डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस के ले रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे फाइबर और उसका सेम हो गया, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप अटैच करके रखते हैं, उस एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जहाँ पे इन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा है सेम हो गया, हॉट स्टेज मेथड, जैसे कि हमने आपका क्लास में करा था, तो जिस पॉइंट पे सेम हो गया मतलब फाइबर का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वही है। इस वे में हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। Then we have double refractive index, particularly in case of some fibers like birefringence कहते हैं। कुछ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स जो हैं, दे एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी ऑफ birefringence, दैट इज डबल रिफ्रैक्शन और डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेल्टिंग अ पॉलीमरिक सब्सटेंस। आपके पास पॉलीमर है, उसको मेल्ट करा या फिर उसे डिसॉल्व कर दिया किसी सॉल्वेंट में, एंड देन इट इज अलाउड टू फाइन थ्रू सम होल्स, टू पास थ्रू सम फाइन होल्स। ठीक है, उसको अलाउ करते हैं कि वो पास करे डिफरेंट, बहुत लाइक फाइन टाइप की ऐसे लाइन से वो पास करे। तो होता क्या है, बाय डूइंग दैट द पॉलीमर इमर्जेस एज अ फाइन फिलामेंट आफ्टर पासिंग थ्रू। अब जैसे ये कर्ल टाइप का था यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ से जब उसे पास करा दिया इस प्रोसेसिंग के बाद, तो वो पैरेलली अलाइंड हो गया फाइबर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसने क्या करा, इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज कर दिया। So the molecules of the fiber, they align parallel to the length of the filament. इस तरीके से वो अरेंज हो गए, and just as the regular arrangement of the atoms produces a crystal, so will the regular arrangement of the fiber polymers cause crystallinity in the finished fiber. तो क्योंकि थोड़ा सा क्रिस्टलाइन अपीयरेंस आ गया इसमें, फाइबर थोड़ा सा स्टिफ हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मतलब अब जब वो थोड़ा क्रिस्टलाइन हो गया, मीन्स थोड़ा सा लाइट की आरआई को उसने चेंज कर लिया। तो कहीं ऐसा होगा कि थोड़े पोर्शन पे उसका आरआई कुछ हो और बाकी पे कुछ हो। सो बायरफ्रिंजेंस को भी हम डिटरमाइन करते हैं। मैनी फाइबर्स हैव टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस बिकॉज लाइट विल ट्रैवल एट अ डिफरेंट स्पीड। अब हमने फाइबर की प्रॉपर्टी चेंज कर दी, उसमें हमने क्रिस्टलिटी इंड्यूस कर दी, तो दैट्स वाई उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स लाइट। तो लाइट विल ट्रैवल एट अ डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज ट्रैवलिंग द लेंथ ऑफ द फाइबर और थ्रू द डायमीटर ऑफ द फाइबर। लेंथ की तरफ जा रही है या फिर डायमीटर से पास कर रही है, चाहे फाइबर राउंड ना हो, इसलिए उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हम पता करते हैं बाय पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप। एज यू कैन सी लाइट सोर्स, ठीक है, अब हमने यहाँ पे पोलराइजर लगा दिया, तो लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में पास करेगी। तो ये आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है। सम ऑफ द मटेरियल्स, जैसे कि आपका कुछ सॉलिड, लिक्विड या गैस या कुछ भी है, तो ये क्या है, लाइट की डायरेक्शन में एक तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लाइट आ रही है तो हाउ द लाइट स्ट्राइक्स एंड हाउ द लाइट पासिस अवे, इस सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दूसरे टाइप के मटेरियल क्या होते हैं, जिसमें मोस्टली आपके सॉलिड होते हैं, ये अलग वे में रिएक्ट करते हैं टुवर्ड्स लाइट, उसका ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन, वो होते हैं आपके एनाइसोट्रॉपिक। और जो सेम वे में करते हैं, दीज आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। सब सारी प्रॉपर्टीज उनमें सेम है। So what these anisotropic material do, when the light is emitted from a source, जब लाइट सोर्स से आ रही है, एंड इट ट्रैवल इन वेव्स अलाइंड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन की हो सकती है, आपका इधर भी जा सकती है लाइट, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, जब वो एक सोर्स से आ रही है। बट पोलराइजर इज अ काइंड ऑफ फिल्टर, ठीक है, हमने यहाँ पोलराइजर लगा दिया, इट ब्लॉक्स आउट ऑल द लाइट एक्सेप्ट दैट विच इज ट्रैवलिंग इन अ सिंगल प्लेन। तो हम इस लाइट को अलाउ कर रहे हैं कि अभी सिर्फ एक सिंगल प्लेन में पास करेगी विद दिस पोलराइजर। तो अभी लाइट क्या हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट। और ये फिनोमिना, ये पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप में यूज होता है, ठीक है, जिससे हम फाइबर या ऐसे मटेरियल्स जो कि डबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देते हैं, जिनका कलर में थोड़ा सा वेरिएशन है, उनके लिए हम यूज करते हैं। So they have these type of materials, they have directionality to their structure. Polarized light will have different optical effects on these substances, इसलिए हम polarized light microscope यूज कर रहे हैं, जिसमें अरेंजमेंट ऐसा है, दो पोलराइजर लगे हुए हैं, ठीक है, एक जो है वो जहाँ पे हमने सैंपल रखा है उसके नीचे नीचे, ठीक है, इट इज बिलो द स्टेज, और दूसरा जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन है। एक तो ऐसे ब्लो साउथ में होगा और एक ऐसे ईस्ट वेस्ट में अलाइन होगा, सो दैट द लाइट दैट गेट्स थ्रू इज अलाइन ईस्ट वेस्ट। लाइट भी ऐसे ही रिएक्ट करेगी जब वो स्ट्राइक करेगा ऑब्जेक्ट को ऑन टू द स्टेज, ठीक है, इट विल रिएक्ट इन सम वे बाय शोइंग अ पर्टिकुलर कलर, तो एक पर्टिकुलर कलर देगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देंगे, पहले हमने नॉर्मली रखा, अब हमने क्या करा, उसको रोटेट कर दिया, तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो चेंज दिखाएगा। इस तरीके की अरेंजमेंट से आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प होती है, कि हम अरेंजमेंट ऐसा रखते हैं। लाइट और डायरेक्शन में आती है, पोलराइजर लगा दिया, एक डायरेक्शन में हो गई। फिर हमने जो हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें, वहाँ हमने क्या करा है, डिफरेंट फिल्टर्स लगा दिए, जिसे हम एनालाइजर नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये वर्टिकली लाइन थी, प्लेन पोलराइज लाइट थी, अब जब यहाँ से पास होगी तो रोटेट हो गया ये। अब जब वहां से उसे पास कराएंगे अपने माइक्रोस्कोप में, तो वो रोटेट कर जाता है। बट अगर हमने एनालाइजर ऐसे लगा दिया इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, तो हमारी लाइट को वर्टिकली पास होना है। अगर ये वर्टिकली अरेंज होता तो लाइट पास हो जाती, बट क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, ये कोई लाइट ट्रांसमिट ही नहीं करेगा और आगे कोई लाइट पास ऑन नहीं होगी। बट वहाँ के अरेंजमेंट में हम डिफरेंट वे में लगाते हैं, सो वी कैन गेट सम वैल्यू, सम रिजल्ट।
फाइबर अंडर पोलराइज लाइट वन फिल्टर, ठीक है, फाइबर अंडर क्रॉस पोलराइज लाइट बोथ द फिल्टर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस ऑफ द कलर्स। तो एक्चुअल में फाइबर हमें ऐसा दिख रहा था, पोलराइज लाइट जब गई तो कुछ नहीं आया, हमें सिर्फ एक ह्यू दिखा कि हाँ मे भी इसमें ऐसा ये हल्का स्लाइट ऑरेंज कलर प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में कलर क्या है, ब्लू भी है उसमें, ग्रीन भी है, फ्लोरोसेंट पिंक भी है एंड लिटिल बिट पर्पलिश टाइप का मटेरियल है। क्योंकि ये हमें तब पता लगा जब हमने इसे पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप से एनालाइज करा। So these are some of the methods like refractive index दिए हुए कॉमन फाइबर्स के, पैरेलल, परपेंडिकुलर और बायरफ्रिंजेंस वैल्यूज भी हैं। तो वी डिटरमाइन, वी मैच विद द लिटरेचर एंड वी डू द एनालिसिस फॉर बोथ। मतलब जैसे हमने ग्लास के लिए बैकलाइन स्टडी करा था, इस तरीके से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज फाइबर्स, इसमें भी आपका बैकलाइन मेथड भी हो सकता है। जो हम बायरफ्रिंजेंस नाम दे रहे हैं, फिनोमिना इज बायरफ्रिंजेंस, बट जो डेविएशन आ रहा है कि वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज दी आप लेंस को सेट करके ये पता कर सकते हैं। देन माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो मैंने अभी पहले बताया था दैट अलाउज द कलर मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल फाइबर्स। A sample such as a fiber is mounted under a microscope. When the light passes through the sample, a image is magnified. ठीक है, it is sent to the spectrophotometer for analysis. तो लाइट सोर्स से लाइट जा रही है, ठीक है, लाइट सोर्स है टंगस्टन बल्ब, ठीक है, ये विजिबल लाइट का सोर्स है, ये यूवी लाइट का सोर्स है। तो लाइट आई फिल्टर होके, ठीक है, अब जब फिल्टर होके लाइट आ रही है यहाँ पे, अब और आपके सैंपल कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आपको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पीक मिल रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से रीजन की लाइट एब्जॉर्ब की है, किस वेवलेंथ पे करी, तो आपको वो कलर पता लग जाएगा कि हाँ इस कलर की लाइट एब्जॉर्ब की। So the spectrophotometer compares the amount of light passing through the air with the amount of light transmitted through or reflected off by the sample. कितना लाइट आई थी, एयर से पास हुई, सैंपल ने एब्जॉर्ब करी, और कितनी ट्रांसमिट हुई, तो आपको वो आइडिया लग जाता है। तो रेशियो ऑफ दीज मेजरमेंट्स इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, क्योंकि हर वेवलेंथ जो है विजिबल स्पेक्ट्रम की वो आपके पास आ जाएगी, या आप ये एब्जॉर्ब निकाल लोगे, ठीक है, और टोटल आपको पता लग जाएगा, तो ट्रांसमिट हुई भी आपको मिल जाएगी। So it is crucial to the comparison process because it can segregate colored fibers that appear visually the same but are different. जो कि हमें नॉर्मली देखने में सेम लग रहे हैं बट एक्चुअल में दे आर डिफरेंट। दैट्स व्हाई फाइबर के एनालिसिस के लिए वी गो फॉर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देन वी कैन यूज एफटीआईआर, ठीक है, एफटीआईआर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। आप अपना सैंपल रखोगे तो इट विल टेल यू द क्लास और सब क्लास ब्रॉडली इन विद दिस पीक्स, इतने वेवलेंथ या इतने वेव नंबर पे अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो आपको इसकी लाइब्रेरी से मैच करके आइडिया हो जाएगा कि हाँ जैसे कि ये नायलॉन 6 कैटेगरी है, सब क्लास इसकी है, वो नायलॉन 612 है, तो यू गेट सम ऑफ द आइडिया रिगार्डिंग दी सब क्लास, मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन तक जा पा रहे हो कि नायलॉन का बना है, और वो भी नायलॉन में भी किस पर्टिकुलर सब क्लास का है, जैसे नायलॉन के भी बहुत सारे वैरायटी। देन पायरोलिसिस गैस जीसी, दैट इज द पायरोलिसिस गैस क्रोमैटोग्राफी। तो आप सैंपल को हीट करोगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और जीसी में इंजेक्ट करोगे, पायरोग्राम जनरेट होएगा, ठीक है, और वो पायरोग्राम आपको बताएगा कि सैंपल आप में आपका क्या क्या प्रेजेंट है। देन सम टाइम्स आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा केमिकल एनालिसिस जैसे केमिकल टेस्ट करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट सॉल्वेंट्स ले रहे हो और उसमें आप चेक कर रहे हो कि आपका फाइबर कैसे बिहेव कर रहा है, डिफरेंट फाइबर्स हाउ दे आर बिहेविंग इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स एंड डिफरेंट एसिड्स। HCl में कैसा बिहेव कर रहा है, एसीटोन में कैसा बिहेव कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में कैसा कर रहा है, डाइल्यूटेड में, लिटिल बिट कॉन्सेंट्रेटेड में, हाइपोक्लोराइट में कैसा एक्ट कर रहा है, लाइक दैट, ठीक है। एंड देन यू कैन परफॉर्म TLC फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द डाइज। आपको पता है कि फाइबर में डाइज हैं, पिगमेंट्स हैं, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। दिस इज अनदर मेथड कि आपने क्या करा, डाइज एक्सट्रैक्ट कर ली यूजिंग सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमारे पास एक TLC प्लेट है, हमने अपना सैंपल स्पॉट करा, स्टैंडर्ड स्पॉट करा, एंड वी अलाउ द प्लेट टू रन इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जैसे मोस्टली डाइज है तो एसीटोन, मिथेनॉल व क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होगी। हमने अपना सॉल्विंग सिस्टम बनाया, स्पॉटिंग करी प्लेट पे, अलाउ कर दिया प्लेट को रन करने के लिए, ठीक है। तो अब वो एक ही डाई है या फिर वो कॉम्बिनेशन है, तो वी गेट अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ दीज स्पॉट्स एज यू कैन सी। जैसे कि एक डाई नहीं है, इस डाई में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर हमारा सैंपल और हमारा स्टैंडर्ड, सपोज कि हमारा सैंपल है और ये हमारा स्टैंडर्ड है, अगर ये सेम तरीके से आ रहे हैं कि यहाँ भी एक स्पॉट है, यहाँ भी एक स्पॉट है, यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, जो कि हमारा इस केस में अगर हम देखें तो नहीं मैच होगा, ठीक है, बट मे बी इसमें है। तो अगर यहाँ जो सैंपल है और जो हमारा स्टैंडर्ड है ये मैच हो रहे हैं, सो दैट विल गिव अस द आइडिया कि हाँ ये जो फाइबर हमें रिकवर हुआ है ये हमारे इसी क्लॉथ या इसी फैब्रिक का है। तो हम क्या करेंगे, वो फैब्रिक हमें पता है, उसकी तो हमें आइडेंटिटी पता है, उसका तो हमें बैकग्राउंड पता है कि हाँ ये विक्टिम का फैब्रिक है, या ये सस्पेक्ट का फैब्रिक हमें मिला है, या हमें ये क्राइम सीन से रिकवर हुआ है जो विक्टिम का घर था, लाइक दैट। तो हमें उसकी आइडेंटिटी पता है, तो हम उससे लिंक कर सकते हैं कि हाँ ये किसको बिलोंग कर रहा है।
So this is all about the analysis, the forensic examination